Good morning, dear students. So today we are here for biology booster class 10th. As you know that your board examination are approaching, so we are just going to revise some important topics of class 10th biology. All power is within you. You can do anything and everything. Believe in that, and you can surely fulfill your dreams. This thought was given by Swami Vivekananda. So together we all work together to achieve our one goal, that is to get good marks in class 10th board examination. So today we are going to discuss very important topic of class 10 biology, which is life processes. So when we are talking about life processes, all the activities which are essential for the survival of an organism, which are essential for the maintenance of work in our body are known as life processes. So you know that when we are just going to discuss this life processes in detail, the first question which comes to our mind that what is nutrition? So when I am saying what is nutrition, so simply we can say the process of taking food in, by an organisms for getting energy is called as nutrition. This nutrition is very important. It is generally of two types. We can simply classify it as autotrophic and heterotrophic. You can see here, this is, suppose I am saying autotrophic nutrition, heterotrophic. Auto is simply derived from two words, self, and trophic means nutrition. The organisms which can prepare their own food, like we know that green plants can easily prepare their own food, so they are called as autotrophs. Heterotrophs mean other, they depend on other for their food. It is of three types: holozoic, saprophytic, parasitic. So when I am saying this kind of nutrition, we will just discuss in detail. When I am saying autotrophic, you can simply differentiate between this autotrophic. Auto means self, trophic means feeding, prepare their own food, depends on others. So I am not going to waste too much of time on that. Similarly, we have saprophytic, chemosynthetic. There are some bacteria which can prepare their food by chemosynthesis. Saprophytic means they are feeding on dead and decaying organic matter. When I am saying in autotrophic, photosynthesis is the process. You know that this is called as life reaction. Oxygen with water, when in the presence of sunlight and chlorophyll, they combine together, they form glucose, oxygen and water. So this is called as life reaction. When I am saying parasitic, absorption of the nutrients from the host. We know that there are different kind of parasites like Cascada plant, अमरबेल का पौधा आपने देखा होगा, जो येलो कलर का एक पौधा होता है, प्लांट्स होती है, बेल होती है, जो दूसरे पौधे से अपना न्यूट्रिशन लेती है. Holozoic, in which the food is taken in the form of larger molecule, which is then broken down into smaller one. So this is simple that we can say. And in autotrophic, there is a very important question. What will happen? What are different steps of this photosynthesis? So simply we can say the plants make food using sunlight, water which provide nourishment to themselves. Chlorophyll present in green plant. Light energy is used to split up water into hydrogen and oxygen, and then this carbon dioxide is reduced into carbohydrate. These three steps we need to learn. Then sometimes the question may be asked, what are stomata? So simply we can say the stomata are the minute pores which are present in the leaves. They help in the exchange of gases as well as transpiration. We are not going to discuss too much about this. There is another very important question, which is nutrition in amoeba. So when I am saying nutrition in amoeba, you can see here there is a first process in which amoeba form pseudopodia. Pseudopodia are cup-like cavity. The food is simply get inside the body. It goes into the food vacuole. This food vacuole, and this food vacuole contain digestive enzyme which help in digestion of the food. So this is the whole process in which amoeba obtains its food. You have to learn this diagram. This is very important question from examination point of view. Similarly, nutrition in human beings. When I am saying nutrition in human beings, again this is divided into 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. We will discuss one by one what will happen. When I am saying ingestion, it is the process of taking food inside the body. So I am just talking about alimentary canal. Alimentary canal is a long pipe
which is starting from mouth to anus. Now the question comes, what type of a question has been asked in the examination? I am just going to discuss some important questions here. Suppose the question can be asked, what is the function of salivary amylase? Salivary amylase. Salivary amylase. Saliva, or we can say. What is the function of saliva? It produces an enzyme which is called as salivary amylase. Salivary amylase. This salivary amylase help in digestion of starch. Now the food is broken down inside the mouth. After this, the food is transferred to the next part of the alimentary canal, and which is called as, we can simply here observe through this diagram. I am just going to tell you. For example, the mouth in which the food is taken in, it is broken down. From here it goes to this pipe which is called as esophagus. This pipe is called as esophagus, and inside the esophagus, peristalsis, there is a movement which is pushing the food down. Now we come to very important question, which is stomach. This is very important question from board point of view, that what does gastric gland secrete? Gastric gland secretes gastric juice, which contain three things: HCl, mucus, and pepsinogen, or we can simply call it as pepsin. Actually, pepsinogen is converted into pepsin. So HCl helps in killing the microorganism. It is making the medium acidic also. Pepsin helps in digestion of protein. Mucus protect the stomach wall. You know that HCl is having pH of approximately 2, which is highly corrosive. How does stomach protect? तो स्टमक की दीवार को बचाने के लिए म्यूकस एक कवरिंग का काम करता है. इसके बाद खाना जो है वो आगे भेजा जाता है. जो अगला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द स्मॉल इंटेस्टाइन, then you can see here in small intestine there is a secretion from liver, secretion from pancreas. लिवर से secretion आएगा bile juice, pancreas से pancreatic juice, और ये जो है खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, और पूरी तरह से जो खाना डाइजेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा. एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है बार बार, वो है कि भाई एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? एब्जॉर्प्शन तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, इस तरह से विलाई होते हैं. विलाई, ये जो विलाई है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. दिस वी हैव टू लर्न. So mouth I have already discussed with you. I am not going in detail. Stomach I have discussed with you. I have discussed this question in detail. Hydrochloric acid, which help in killing of microorganism. Pepsin help in digestion of protein. Mucus protect the stomach wall. There is another question which is generally asked in examination. The length of the small intestine is different in different organisms. So there is a very important question, that the length of alimentary canal of lion and deer when we compare. So just tell me, whose alimentary canal is longer? Yes, you are very right. Deer is having longer small intestine as compared to lion. क्योंकि डियर को डाइजेशन करना है सेलुलोज का, और सेलुलोज के डाइजेशन में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए हर्बीवोर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है. तो आपने याद रखना है इसको. लिवर का रोल हमने पढ़ लिया. नाउ यू कैन चेक इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पे हो रहा है? माउथ में. प्रोटीन फैट का डाइजेशन यहां पे शुरू नहीं होता. स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम चले जाते हैं तो स्टार्च, प्रोटीन, फैट सभी का डाइजेशन है. पैंक्रियास में जो एंजाइम है वो डाइजेशन में मदद करती है. तो हमें याद रखना है, दिस इज. So I have told you that there is a very important structure which is there in small intestine, and these are called as microvilli. These structures are called as microvilli. Microvilli जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाए.
तो ये हमें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया। एसिमिलेशन, जो हमने खाना खाया और कैसे यूज हुआ टू गेट एनर्जी, तो सिंपल भाषा फॉर द रिपेयर, ये आपको याद रखना है। Digestion, undigested food is taken out from the body. This is called as digestion. You can see here, this is a simple mind map. Autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. Autotrophic is the way photosynthesis. Heterotrophic I have mentioned already, saprophytic, holozoic, parasitic. तो saprophyte जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि फंजाई। होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों की फॉर्म में खाने को लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। पैरासाइट्स में आपके लीच, कसकटा वगैरह आते हैं जो होस्ट के ऊपर फीडिंग करते हैं। फिर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा, सैलिवरी ग्लैंड। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स हैं ये हमने पढ़े। लीवर, पैंक्रियास का फंक्शन हमने पढ़ा। So we have, this is about nutrition part. So now we will discuss another important part of life processes, that is breathing. So when we just observe, we can simply call what is breathing. So when we are talking about breathing and respiration, breathing is simply exchange of gases, कि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, that is breathing. But when we are saying respiration, it is oxidation of food. ये ऑक्सीडेशन होता है फूड का। और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमें सिंपल भाषा में याद रखना पड़ेगा, इट इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जो आपकी बुक में बार बार पूछा जा रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। द रेस्पिरेशन व्हिच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन produces considerable amount of energy for use by the organism which is stored in ATP molecules. Mitochondria are the site of aerobic respiration. ये आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसकी साइट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये ब्रोकन डाउन होगा, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉर्डर में नहीं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कम एटीपी बनेंगे, वहाँ पे ज्यादा एटीपी बन रहे थे। ऐसे ही प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी मसल्स में होता है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट इन मसल्स, तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स भी बनते हैं और वो लैक्टिक एसिड की वजह से बनते हैं। किसी वजह से बनते हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से बनते हैं। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है एग्जाम में कि भाई आपको डिफरेंसेस बताने हैं। यू हैव टू टेल द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट, सॉरी एरोबिक एंड एनारोबिक। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक होता है, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में एरोबिक। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है वो एरोबिक, जिनमें नहीं होता वो एनारोबिक। तो आपको याद रख लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, आपने उस फ्लो चार्ट पर फोकस करना है। वो फ्लो चार्ट क्या कहता है? वो कहता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट एंड पायरुवेट इज देन ब्रोकन डाउन बाय 3 डिफरेंट पाथवेज। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्किन से लेते हैं, अर्थवर्म वगैरह आपने देखा होगा स्किन से लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह, ग्रास हॉपर वगैरह में छोटे छोटे छेद होते हैं साइड में, स्पाइरिकल्स कहते हैं जिसे, और स्पाइरिकल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, यू कैन सी दिस डायग्राम। जनरली इट इज एडवाइज्ड, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू ब्रीथ थ्रू नोज नॉट थ्रू माउथ? क्योंकि नोज में हमारे फिल्टर लगा हुआ है। जब हम सांस लेते हैं तो नोज से जो हवा है वो अंदर जाती है। हवा जाने के बाद क्या होता है, नाक के अंदर, नोज के अंदर म्यूकस होता है, हेयर होते हैं जो हवा को फिल्टर करते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो हवा को वार्म करते हैं ताकि आसानी से डिफ्यूज हो पाए। फ्रॉम हेयर इट गोज टू ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे जाता है ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, और छोटे छोटे देख सकते हैं आप यहाँ पे गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं एल्वेओलाई। एल्वेओलाई में जाके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ से होता है। तो ये हमें याद रखना है। We have already discussed about stomata. I'm not going to discuss that.
लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नाउ वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज ट्रांसपोर्ट। व्हाटएवर वी हैव ईटन, हमने जो खाना खाया, हमने जो सांस लिया, अब उसका जो ऑक्सीजन है या जो गैसेस है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? सो वी हैव ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, यू आर वेरी करेक्ट। व्हिच इज द मेन part of circulatory system in human body? Yes, heart. Heart is very important part. It is a pumping organ, and along with blood vessels it helps in transport of nutrients, transports of oxygen, and you know that blood consists of plasma. Plasma is a matrix. Red blood cells which help in transport of oxygen, WBC which improve our immunity, platelets or blood clotting. So we have to learn this. Sometimes the question is asked that what is the function of these blood vessels, arteries, veins and capillaries. तो एक सिंपल भाषा में एक क्वेश्चन आ रहा है कई बार, जो बार बार पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि what is the difference between arteries and veins. बोर्ड में क्वेश्चन आया है, मान लीजिए। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को दे कैरी, सिंपल भाषा में अगर हम कहें, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, बिल्कुल सिंपल भाषा में याद कर लीजिए, हार्ट टू बॉडी। और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी से कहां लेके जाएंगी? बॉडी टू हार्ट। ज्यादातर इनमें जो ब्लड होगा वो होगा जी ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन रिच होगा। इनमें ज्यादातर कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड होगा और पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड होगा। आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है, आर्टरीज की अगर ऐसे दीवार बात करें, डायमीटर की बात करें तो पतला होता है, वेन्स का ज्यादा खुला होता है। आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होते, वेन्स में वॉल्व होते हैं। आर्टरीज के ल्यूमेन पतले होने की वजह से इनमें प्रेशर ज्यादा होता है, हमने याद रखना है कुछ चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Now I am simply going to discuss very important question of this chapter, and which is blood circulatory system. So blood circulatory system, I will take here green. Blood circulatory system, हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट में 1 2 3 4 चैम्बर होते हैं जी, 4 चैम्बर। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। अब होता क्या है कि ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारे बॉडी पार्ट्स से इकट्ठा होके आता है वेना केवा के थ्रू और इसे लेके आते हैं। वो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा मुझे राइट दिखाई दे रहा है और ये वाला लेफ्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उल्टा है प्रोसेस में। यहाँ इस हार्ट में क्या है कि ये वाला जो पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, दिस इज लेफ्ट पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है ये राइट पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन होगा ये कौन सा होगा जी? राइट एट्रियम। ये कौन सा होगा? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा होगा? राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, ये यहाँ से धकेल दिया गया, कहाँ पे? वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? लंग्स से, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आए, यहाँ से ब्लड यहाँ भेज दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के दोनों वेंट्रिकल कनेक्ट हुए, तो राइट वेंट्रिकल से देखिए बच्चों ब्लड कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल से ब्लड साफ होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए चला गया। अब इस तरह का जो सर्कुलेशन है, जो 2 बार सर्कुलेशन करता है, उसको कहते हैं, एक सर्कुलेशन होता है जी पल्मोनरी जो लंग्स में जाता है, और दूसरा बॉडी में जा रहा है उसको कहेंगे सिस्टमिक। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन 2 तरह से सर्कुलेशन होता है। दैट्स व्हाई द सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। Why it is beneficial? To supply more energy. तो ये मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हो गया कि भाई हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, और जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है बेसिकली, जो राइट दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड होता है, इधर डीऑक्सीजनेटेड होता है। सर्कुलेशन 2 बार होता है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। द हार्ट बीट नॉन स्टॉप्स, पता ही आपको, अगर हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो हम भी रुक जाएंगे, तो ये आपको पता ही है। ये हम सिंपल भाषा में जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक बार ये जो राइट एट्रियम दिखाई दे रहा है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आ रहा है, कौन से? वेना केवा से, दिख रहा है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम लंग से ब्लड को लेके आ रहा है।
राइट एंट्रेंस से ब्लड वेंट्रिकल में या लेफ्ट एंट्रेंस से। ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है रेड पोर्शन, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड, ब्लू का मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो दो बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार लंग्स में जा रहा है, इसको पल्मोनरी कहा, जो नीचे जा रहा है सिस्टमिक। और ब्लड कैपिलरीज इज ए साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, यानी आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको आप कहते हैं वेन्स, तो सॉरी उसको कहते हैं कैपिलरीज। व्हाट इट? अगर हम रेप्टाइल एम्फीबियंस में कहें तो यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट होता है, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, ह्यूमन में कितने चैम्बर होता है? यस 4 चैम्बर, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर। ये मैंने पहले बता दिया आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। एक और क्वेश्चन आता है ब्लड प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels and normal blood pressure की रेंज है 120 to 80। एक सिस्टोलिक होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक जब रिलैक्स कर रहा हो। अगर ये 120 से 130 हो जाए, 80 वाला 90 हो जाए तो कहते हैं भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया इस व्यक्ति का। ट्रांसपोर्टेशन, सेम वे में ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है प्लांट्स में भी, और आपको बताइए ये तो जाइलम टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, पढ़ के आए हैं क्लास 9 में। जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है पानी का। और फ्लोइंग क्या करेगा? तो फ्लोइंग क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोइंग इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन। एटीपी इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट। द फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, जबकि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल है। ये टॉपिक हमारे काम के थे आपके बुक में। अगर हम बात करें इसको, अगर हम देखें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है वहां पे। अगर हम बात करें एम्फीबियंस वगैरह में, ब्लड वेसल्स में वेन्स और आर्टरीज हैं। जो एक लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का रहता है उस पर हम आ जाए अगर एक्सक्रीशन, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं जिनमें से यूरिया एक है। एलिमिनेशन ऑफ यूरिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और आपको पता है कि भाई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ये डायग्राम बहुत 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीजें हमने फोकस करनी है। अगर हम देखें इसको, आप देखिए पेयर ऑफ किडनीज यहाँ पे है, ये पाइप दिखाई दे रही है, यूरिटर है, ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर चला जाएगा। ब्लड फ्री फ्रॉम टॉक्सिक वेस्ट कम आउट ऑफ द किडनी बाय रेनल वेन। यूरिनरी ब्लैडर pear shaped, बैक मस्कुलर एंड इलास्टिक। देन kidney excretion of nitrogenous waste, urea, uric acid, formation of urine, pH balance, H2O, renal artery supply the blood along with some impurities। तो ये काम है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, और इस यूरिनरी सिस्टम के फंक्शनिंग करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं जी नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? तो हमारी किडनी में बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन होते हैं। ब्लड जो है वो रेनल आर्टरी जो ब्लड को लेके जा रही है वहां और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स में, और वो यहाँ से ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या करता है, अगले वाले पार्ट में जाता है, इसको वैसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। हम यहाँ पे इसको नॉर्मल वे में डक्ट्स कह देते हैं, पाइप्स कह देते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इकट्ठा हो जाता है जाके कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में इसको भेज देती है, और यूरेटर के थ्रू ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्या है एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन है नाइट्रोजनियस वेस्ट का रिमूवल। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, नेफ्रॉन का डायग्राम बना के दिखाइए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कई बार किसी व्यक्ति की अगर किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस किया जाता है, आपने सुना होगा। तो ये आर्टिफिशियल किडनी होती है, ये जो ब्लड को यहाँ से बाहर भेजा जाता है डायलिसिस बैग में, वो दोबारा से ब्लड को फिल्टर करता है और बॉडी के अंदर चला जाता है। कभी कभी ये काम भी नहीं आती चीजें, देन देयर इज ए नीड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज जनरली डन फ्रॉम द रिलेटिव और देयर इज ए ब्लड रिलेशन, ताकि जो किडनी लेता है कोई ऑर्गन बॉडी तो वो मिसमैच नहीं होती, उसको बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। सेम वे में एक्सक्रीशन इन प्लांट, CO2H4 रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू, कन्वर्टेड इन गम्स, रेजिन, लेटेक्स स्टोर में स्टोर हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन लीव्स, बार्क्स, बाय शेडिंग द लीव्स गिर जाती है, एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा प्रोसेस है जिसके बारे में अगर हम बात करें, और अगर मैं थोड़े से वे में इसको रिकैप करना चाहूँ तो पहला क्वेश्चन सेरेब्रल एमाइलेज का क्या फंक्शन है? सेरेब्रल एमाइलेज डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है। अगर मैं स्टमक में जाऊँ
तो एचसीएल का क्या काम है, म्यूकस का क्या काम है, पेप्सिन का क्या काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाऊं तो माइक्रोविलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर की बात करूं तो वो बाइल जूस रिलीज करता है, बाइल जूस डाइजेशन में मदद करता है, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सक्रीशन में जाएं तो नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी का फंक्शन क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।